Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Today the topic is organization of human nervous system. We discussed about the electrical synapse, chemical synapse. Now the topic is organization of human nervous system. I hope the previous topics are clear, and the topic of neurotransmitter is also clear. That is easy and that is important according to the MCQ point of view and examination point of view. Now the topic is organization of human nervous system. Actually, the nervous system in case of human, that is very centralized and specialized, and that is the advanced type of central nervous system. We divide the nervous system into two main types: central nervous system and peripheral nervous system. The central nervous system consists of brain and spinal cord, and these two parts, that is brain and spinal cord, are the coordinating centers. Actually, the brain is involved in coordination. The brain is more involved in the coordination. The spinal cord is just acting like a link between the peripheral nervous system and the brain. So we have divided the nervous system into two: central nervous system and peripheral nervous system. As you can see in this flow chart, we have divided the nervous system into central nervous system and peripheral nervous system. And central nervous system consists of brain and spinal cord, and peripheral nervous system consists of motor neurons and sensory neurons. Now, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सो इट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. Sensory neurons are the part of central nervous system or peripheral nervous system. It is the part of peripheral nervous system. Now we divide the motor neurons into two types: somatic and autonomic. Somatic nervous system is that type of nervous system which consists of voluntary response. What do you mean by voluntary response? The responses which are under our control, under our wish. And we divide the motor neuron into autonomic nervous system. The autonomic nervous system is that type of nervous system which consists of involuntary responses, that is influencing the organs, glands and smooth muscles. ठीक है? So somatic nervous system is for the voluntary, autonomic is for the involuntary. Autonomic means automatic. Autonomic means automatic. ठीक है? और somatic means कि that is voluntary, that is under your wish, under your control. Then we divide the autonomic nervous system into sympathetic and parasympathetic. Actually, sympathetic nervous system works during the fight or flight or during the stressful conditions, and parasympathetic works जब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम या रेस्ट एंड डाइजेस्ट डिविजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. रेस्ट एंड डाइजेस्ट when we are comfortable, when there is no stress, when we are eating and digesting the food. Here, if we have stress, if there is a stressful condition, we are in a fight or flight, then there is inhibited digestive system, and there is lot of circulation goes towards the heart, brain and important vital organs. ठीक? Now the topic is central nervous system, and we divide the central nervous system into spinal cord and brain. And there is a topic named protection of brain and spinal cord. The brain, it is protected. The spinal cord, it is protected. It is a sensitive part of the human body. It must be protected from any stress. It must be protected from any mechanical stresses. So the brain and the spinal cord is protected in three ways. Number one, we have the skeleton protection, that is we have the cranium and we have the bony skeleton, ठीक, which is protecting your brain and spinal cord from any kind of हम कह सकते हैं stress, from any kind of injury, from any kind of accident,
यू आर प्रोटेक्टेड। हाँ, जब बहुत तेज़ लगती है या बहुत ज़ोर से लगती है तो फिर आपके पास वहाँ पर क्या होता है, इंजरी आती है और मेनिंजेस डैमेज होती हैं और ब्रेन को जो है वो इंजर्ड होता है ब्रेन, ठीक है। सो द स्केलेटन दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम। सो आपके पास हम कह सकते हैं कि आपका स्केलेटन जो है इसमें क्या क्या आ जाता है, क्रेनियम आ जाता है और वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। आपके क्रेनियम जो है वो ब्रेन बॉक्स को कवर्ड किए हुए है और वर्टिब्रल कॉलम जो है देयर आर 33 वर्टिब्रे दैट इंक्लूजेस द स्पाइनल कॉर्ड, और इसको प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी एक्सीडेंट से, किसी भी फिजिकल ट्रॉमा से। दैट इज सो इजी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, एक्चुअली यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है ये मेनिंजीज से रिलेटेड है। व्हाट इज मेनिंजी? मेनिंजीज आर एक्चुअली द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ग्रीन पैटर्न देख रहे हैं, ग्रीन लाइन, ये मैंने बनाया है आपके पास cerebral hemisphere, and then we have the midbrain, then we have the pons, and then we have the medulla, and then spinal cord। तो सबसे ज़्यादा आपके ब्रेन के साथ अटैच ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी वॉस्कुलर लेयर है, ऐसी कनेक्टिव लेयर है जो कि किससे बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनी हुई है। दिस लेयर विच इज़ वेरी मच क्लोज टू द ब्रेन, surface of the brain, surface of the cerebral hemisphere as well as the spinal cord, this layer is called the pia mater। पाया मीन्स कि आपके पास वो लेयर, फर्स्ट लेयर जो ब्रेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और हमने कहा कि पाया मीन्स सॉफ्ट एंड मैटर मीन्स मास। ये ऐसी सॉफ्ट लेयर है ब्रेन की जो ब्रेन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, और साथ साथ ये क्या है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इर्द गिर्द एक कनेक्टिव लेयर बना रही है, राइट। द फर्स्ट लेयर इज पाया मैटर। इफ देयर इन केस ऑफ MCQs अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि द layer which is very much close to the brain is pia mater, and then the second layer is arachnoid, the green layer, the second layer is arachnoid, this is the arachnoid layer, the arachnoid is after the pia mater, arachnoid has trabeculae inside it। ये आप देख रहे हैं स्पाइडर वेब की तरह, स्पाइडर वेब की तरह यहाँ पर ट्रेबिक्यूलाए हैं, और यहाँ पर ये रीजन जो है ये CSF से फिल्ड होता है, ठीक है। और यहाँ हम कहते हैं कि द सेकेंड इन बिटवीन लेयर इज द arachnoid which is just like spider web, and after the arachnoid we have dura mater which is the tough layer। आपने देखा होगा फ्रिज जब आप लाते हैं या कोई अप्लायंसेस आप लेकर आते हैं, वहाँ पर लिखा होता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स कि इट इज़ टफ लेयर, it is the toughest layer of the brain, it is the toughest layer of the spinal cord। So the brain is protected in 3 layers, number 1 pia mater, number 2 arachnoid, number 3 dura, and if we move from top to bottom then dura, arachnoid and pia mater। The layer which is very much close to the brain is pia mater, in between we have arachnoid, and then we have the dura mater which is the toughest layer। okay, अब आपके पास ये टॉपिक आ जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ठीक है। द कंबाइंड प्रोसेसेस ऑफ डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपकी बुक में मेंशन है। यहाँ हम इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे आपके पास आपका ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो आपने समझना है कि ब्रेन में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट कितने हैं और कहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो दिस द आउटर ब्लैक लेयर इज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, देन वी हैव द मिड ब्रेन, देन वी हैव पॉन्स, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज, ये आप देख रहे हैं ये सर्कल्स जो दो हैं, दैट इज द विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज द थैलेमस ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के डीपर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो थैलेमाए हैं।
थैलेमाई से जब हम साइड्स पे ले लेते हैं तो यहाँ पर कैविटीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये कैसी कैविटीज़ हैं, ये ऐसी कैविटीज़ या वेंट्रिकल्स हैं जो कि फिल्ड हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर आता कैसे है इसकी हम डिटेल अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो वी हैव number 1 ventricle, which is the lateral ventricles. These are the two lateral ventricles which is at the side of the thalami. Then we have the foramen, these circles foramen, which are connecting the lateral ventricles with the third. In the center we have the cavity, we have the ventricle which is the third ventricle. First and second ventricle, then we have the third ventricle. The third ventricle is connected with the two ventricles by a foramen which is called the foramen monro, ठीक है। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट इतना समझें कि यहाँ पर क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। देन आपके पास ये वाली जो थर्ड वेंट्रिकल है ये ओपन होगा मिड ब्रेन में और ये एक्सटेंड होगा डीप डाउन, पॉन्स को क्रॉस करेगा, फिर मेडुला को क्रॉस करेगा और मेडुला के बीच यहाँ पर ये डक्ट्स बना देगा या फोरामेन बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके मेडुला के मिड तक रहेगा, फिर उसके बाद ये एक सेंट्रल कैनाल बनाएगा जो कि एक्सटेंड करेगी स्पाइनल कॉर्ड को। तो अगर क्वेश्चन आए कि देयर आर हाउ मैनी वेंट्रिकल्स इन केस ऑफ ब्रेन, सो देयर आर 4 वेंट्रिकल्स. The 2 ventricles are at the side of the thalami. The third ventricle is in the center of the thalami. The fourth is in between the pons and medulla, pontomedullary junction. Then question arises कि आपके पास ये cerebrospinal fluid आता कहाँ से है। असल में आपके पास यहाँ पर होते हैं choroid plexus. Choroid plexus. What is choroid plexus? Choroid plexus is that type ऑफ ब्रांचिंग जो कि आपके पास क्या देता है, फुली सप्लाइड ब्लड देता है जो कि न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, दिस इज द पाया मैटर, दिस इज द ब्रेन, इनसाइड द ब्रेन वी हैव द एपेंडाइमल सेल्स एंड देन वी हैव द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है यहाँ पर फिल्ड होगा, ये आप देख रहे हैं रेड शेप में, दिस इज द कोरॉइड आर्टरी विच इज एंटरिंग एंड दिस इज द कोरॉइड प्लेक्सस विच इज लीविंग। तो यहाँ अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा हाईलाइटेड देख लें तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपके पास ये एपेंडाइमल ब्लू में सेल्स हैं जो कि आपकी ब्रेन का पार्ट होते हैं, इनकी ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है या एपिथेलियल सेल्स हैं, इनमें सोडियम के पंप्स होते हैं जो कि एक्टिवली सोडियम थ्रो करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। तो इस तरह से ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाती हैं। आपके लेवल का इतना यहाँ पर काफ़ी है कि आप ये समझें कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन कोरॉइड प्लेक्सस करवाते हैं। कोरॉइड प्लेक्सस यहाँ पर एक्चुअल सोडियम क्लोराइड और वाटर लेकर आते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाने की वजह से आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, फ्लूइड फॉर्मेशन होती है फ्लूइड की। तो जैसे कि आपकी बुक में मेंशन है कि जी डिफ्यूजन के थ्रू और पिनोसाइटोसिस के थ्रू होता है। डिफ्यूजन के थ्रू आपके पास वाटर भी आता है, ठीक है। सोडियम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्लोराइड पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वाटर जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो वाटर भी आ जाता है एपिथेलियल सेल्स से। सो देयर आर फ्यू सब्सटेंसेस जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि पिनोसाइटोसिस से भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि डिफ्यूजन से हैं। सो वी आर सेइंग कि आपके पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इसके बीच में क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किधर है, एक तो आपके पास वेंट्रिकल्स के बीच है और एक
आपके ब्रेन को भी सर्कल कर रहा है। किस लिए? असल में ब्रेन की प्रोटेक्शन विद इन भी चाहिए और आउटर साइड से भी चाहिए। So there is a cerebrospinal fluid is a special type of fluid present within the central nervous system and around the central nervous system. They are actually the cavities within the brain which are filled with the cerebrospinal fluid.